Hello and a very warm welcome to all of you out there. Today we start with a completely new topic which is e-business. E-business हमारे इस प्लेलिस्ट में न्यू टॉपिक है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे लाइफ में, हमारी डे टू डे वर्क में, हमारे ज़िंदगी में ये बिल्कुल भी न्यू टॉपिक नहीं है. हम e-business, E stands for what? E stands for इलेक्ट्रॉनिक. तो हम जब भी इलेक्ट्रॉनिकली कोई काम करते हैं तो उसे हम e-business कहते हैं. And I guess each and one of us have gone through this electronic media thing. ये जो हम और आपसे बात हो रही है ये भी तो वाया इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो है. ये व्हाट्सएप, ये यूट्यूब वगैरह सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं. तो बेसिकली जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं, मतलब वाया इंटरनेट जब बिजनेस करते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या डिजिटल बिजनेस कहते हैं. अब तो पहले तो होता था कि these commerce, these was just they were just on computers. अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, कंप्यूटर्स पे था. धीरे धीरे यही चीज़ मोबाइल पे आ गया. जब मोबाइल पे हर एक सब साइट का आपका ऐप बन जाता. देयर इज़ एन ऐप फॉर अमेज़न, देयर इज़ एन ऐप फॉर फ्लिपकार्ट, देयर इज़ यू नेम इट एंड दे हैव एन ऐप. So basically in this entire e-business section we'll be studying about कि e-business होता क्या है, ई बिज़नेस में इंटरनेट और उनके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, क्या अलग अलग मॉडल्स हैं जिसके वाया हम लोग ई बिज़नेस का काम कर सकते हैं, क्या यूज़ है, वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू द सोसाइटी, टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द कस्टमर्स, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट. वी डिस्कस दैट and then we'll also discuss the various customer relation chain, right? Now, one of the most important things in e-business is the various security threats that they are being imposed upon these days. So we'll also be discussing about towards the last of the chapters, we'll be discussing about the various computer threats the e-commerce thing imposes, and what are the various ways that the people have evolved in due course of time to tackle those problems. So one of the first things here is we have to understand what is e-business. So e-business is what? E-business is online business, electronical business, digital business, in which the business is done electronically over with one another, right? Now this is a business, the concept, देखिए ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन ये ई बिज़नेस का कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट आया 1996 में. And since then it has been growing over time to time. You see how is it important? Let me start with giving you an example. Suppose you think about any business portal. Suppose you think of Amazon, right? If we talk about Amazon, and we keep on, it is one of the biggest sites out there, and so we take example of Amazon, and then we move ahead. Now suppose we take the use of example of Amazon. Now imagine you are going through the Amazon and you want to hunt for some kurti or some shirt, or for that matter. So you hunt for it, you just look at it, or you just don't look at it, you buy it. Whatever you do, what happens is next time if you have installed an app, you will get an application you'll get a notification all by itself that what are the various accessories, or what are the various pants or shoes or bags or whatever which would match the dress with the shirt that you've bought, the shirt that you've just seen. तो क्या हो जा रहा है इसमें, हम लोग जैसे क्या होता था, अगर एक शॉप होता था जो सच में प्रेजेंट होता था, तो आदमी वहाँ पे जाता था, वहाँ पे जाके देखता था, चीज़ों को ट्राई करता था. एक जो सेल्समैन होता था, अगर वो फ्री रहता था तो एक के पीछे एक ही लगता था, वरना एक सेल्समैन 2-3 लोगों को केटर करता था. यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज दिस सम पर्सन बिहाइंड द सीन who is not visible to you, but he's trying to keep an eye on each and everything that you desire, each and everything that you actually see, look at, and जो भी आप हंट करते हो उससे मैचिंग चीज़ें, सब चीज़ वो ढूंढ के निकाल के देते हैं. इसे हम 1-to-1 मार्केटिंग कहते हैं. 1-to-1 मार्केटिंग में वो ट्राई करते हैं कि हर एक जो कस्टमर है, every customer feels important that way, right? Now there are certain features of e-business online business that we should know. एक है, it is easy to set up. Obviously we know that it's obviously easy कि कैसे काम करना है. Then इसमें कोई geographical boundaries नहीं है. If we want to go to a shop, then there is this one shop, and if it opens a branch at some other place, then you can go to the other shop. But electronically तो आप कहीं से भी किसी चीज़ को access कर सकते हैं.
ये चीप होता है क्योंकि उसके जो ट्रेडिशनल शॉप्स में आपको जनरली MRP पे सामान ख़रीदना पड़ता है, लेकिन ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं ये तो काफ़ी डिस्काउंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। देन इसके वर्किंग आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं ऑब्वियसली। सपोज दिस इज़ एट ऑलमोस्ट 12 midnight, and if I want to buy shoes I can do that, if I want to buy a dress I can do that. सो कोई फ्लेक्सिबल कोई आज नहीं है कि 10 बजे से 5 बजे या 8 बजे तक दुकान खुली रहेगी तभी आप जाके खरीद सकते हो, आप कभी भी खरीद सकते हो। और बेस्ट पार्ट इज़ विथ नो एक्स्ट्रा चार्जेस दे एक्चुअली कम टू योर डोर स्टेप टू डिलीवर। इससे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी कम लगे, क्या कॉस्ट कम लगते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में गवर्नमेंट से की तरफ से काफ़ी सब्सिडीज मिलती हैं। देयर इज़ फॉर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इशूज, एज इन शॉप में you need people, they need to be scanned, you need security guards, you need cameras, you need all that stuff. Nothing of that sort is required here. Then there is no personal touch. शॉप को अपनी तरह से आप सजा सकते हो यहाँ पे, तो जिस तरह से आपको बना के दिया आपका साइट, आप उसको हिसाब से चेंज करते हो। बाय एंड सेलर ऑब्वियसली दे डोंट मीट। डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज़ वन डिमेरिट दैट जो दो इट्स चार्जिंग लेस, टाइम फ्लेक्सिबल है और आपके घर पहुंचा दे रहा है, फिर भी जो डिलीवरी हो रही है इट और टेक्स 2, 3, 4 days, 15 days, वट एवर दे टेल यू वेल इन एडवांस कि कितने डेज लगते हैं, एंड देन द प्रोसीजर गोज ऑन। देन देर इज़ अ ट्रांजेक्शन रिस्क। ये ट्रांजेक्शन रिस्क देखिए क्या होता है कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि काफ़ी साइबर लॉज बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं, सिटी में कोई भी सिटी मान लीजिए किसी में आप रह रहे हैं, उस सिटी में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 थाने आते हैं, वो पुलिस स्टेशन आते हैं। एक पुलिस स्टेशन A आता है, एक पुलिस स्टेशन B आता है। आप सपोज आप जो रेसिडेंट हैं पुलिस स्टेशन A के हैं, तो सारे चीज़ आपके A के थाने के अंदर में ही हो रहे हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपकी पर्स की या बुक्स की वट एवर समथिंग इज स्टोलन फ्रॉम दैट एरिया बिलोंग्स टू स्टेशन B, बिलोंगिंग टू स्टेशन B, तो आप किसको जाके कंप्लेन करेंगे? आप स्टेशन B के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करेंगे कि स्टेशन A के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करेंगे? तो क्या होता है, इसके लिए साइबर लॉज बने हुए हैं, जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होती है या जो भी प्रॉब्लम होती है, तो जहाँ देयर वेरियस साइबर लॉज एंड साइबर सेल्स विच आर डेल्ट। साइबर लॉ IT एक्ट 2000 बना हुआ है, साइबर सेल्स बने हुए हैं, जहाँ जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम है आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि आपके जो ट्रांजेक्शन्स अभी होते हैं वो आप इलीगल ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकते हैं। अभी जब वो जो लॉज बने हैं उन्होंने सारा, पहले से हवाला वगैरह में चला जाता था, अभी क्या है जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑनलाइन सबको लीगलाइज कर दिया गया है। आप कुछ भी चीज़ परचेज करें तो दे विल आस्क यू हाउ डू यू वांट टू पे, you want to pay via credit card, debit card, and there are so many Google Pay, Samsung Pay, and I don't know what not pay, Paytm. There are innumerous apps which allows you to pay, right? तो ट्रांजेक्शन जो है वो रिस्क पे होता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। Then anyone can buy anything from any place and at any time. That is true. ट्रांजेक्शन रिस्क हायर है देन द ये ट्रेडिशनल बिजनेस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। नाउ ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग विच यूजेस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए अभी आप लोगों की मैक्सिमम की ऑनलाइन पढ़ाई चली है। सपोज लेट अस टॉक अबाउट यू एंड मी। If you and me, we are studying through the online portal. एक मेरा ये कंप्यूटर या मोबाइल जिससे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है, एक ये ऐप है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं आपका रिकॉर्ड करने के लिए, एक यूट्यूब होगा जिसे हम अपलोड करेंगे, उसके बाद ये ब्राउज़र पे जाएगा, उसके बाद आप अपने मोबाइल पे या आप अपने कंप्यूटर पे इसे एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह और बाकी लोग जहाँ पे जहाँ है जिसका जैसी ज़रूरत होती है वो एक्सेस कर पाते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है ट्रेड करने का, ई कॉमर्स, जो बाइंग एंड सेलिंग को करता है सब चीज़ का, चाहे वो गुड्स हो, सामान, आप शूज़ वगैरह खरीद रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह जा रहे हैं,
और सर्विसिंग जैसे सर्विसेज, जैसे पढ़ाई या एडवाइजेज या वट एवर सर्विसेज विच हैव बीन प्रोवाइडेड। अभी देखिए गुड्स एंड सर्विसेज भी अगर होता है तो वी विल स्टडी लेटर इन द लेटर चैप्टर्स कि कैसे ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है और कैसे ये इलेक्ट्रॉनिकली होने के कारण किसी भी मतलब दिस इज़ अमेजन हो तो अमेजन के टाई अप विद बीबा एंड वट एवर, आप लोग जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करते हैं राइट। अब जोमेटो आपके सिटी के सारे बेस्ट जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सबको केटर करता है। मान लीजिए आप ही की सिटी में डोमिनोज KFC वगैरह सब खुले हुए हैं, सबके अपने अपने ऐप्स हैं, लेकिन जोमेटो और स्विगी के थ्रू वो सारे ऐप्स भी काम करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क जो फ्लेक्सिबल टाइम्स उनके होते हैं और वो गुड्स सर्विसेज और इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड करते हैं राइट। एंड हाउ, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो गुड्स में आपके आ गए डिजिटल्स, कैमराज, म्यूजिक सिस्टम, क्लोथ, एसेसरी। इंफॉर्मेशन आ गया जैसे सब्सक्रिप्शन टू सम लॉ साइट एक्सेट्रा। सर्विसेज, मैट्रिमोनियल सर्विसेज, naukri.com, shaadi.com, placement services, etc. Right? Now, European Union website defines e-commerce as a general concept covering any form of business transactions or information exchange that is made by using information communication technology. ये information communication technology throughout the e-business chapters that we'll be discussing, it will be referred to as ICT. तो जब कंप्यूटर काम करना शुरू किया था, जब कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट काम करना शुरू किया था, तो दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी राइट। तो कैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली टैंजिबल और इंटैंजिबल ग्रुप्स को डिलीवर करते हैं। नाउ ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज जैसे अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र अभी देखिए अभी तो सारा कैशलेस इकोनॉमी हो गया ना, कैशलेस इकोनॉमी हो गया है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कैशलेस, चलो अच्छे से सारे कैशलेस काम करो। अभी तो और भी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग और द मोर कैशलेस थिंग हैज़ बीन कम अप। हम लोग ATM से किसी भी बैंक, पहले भी हुआ था, जैसे पहले जब ATMs का कॉन्सेप्ट नया नया आया था तो स्टेट बैंक के ATM से आप सिर्फ स्टेट बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप उसके पैसे निकाल सकते हैं। HDFC का ATM है तो सिर्फ HDFC में आपके अकाउंट जो उसी से आप पैसे निकालते हैं। अभी क्या है ना, अभी सब इंटरकनेक्टेड हो गया है, आप किसी भी ATM से अपने किसी भी बैंक के पैसे निकाल सकते हैं एंड इट इज़ अपडेटेड, अपने आप पूरा सारा अपडेट हो जा रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी हो रहा है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र में जो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र जा रहा है, डेटा एक्सचेंज जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग आपकी हो रही है, उसमें सेल्स, कस्टमर सपोर्ट जा रहा है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट जा रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजते हैं तो वाया फैक्स भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं। कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोलैबोरेटिव वर्ल्ड। अभी तो you have this national digital library which has all the books, then you have Swayam which has all the courses, then there is EDNext or something which has all the courses. तो अभी तो सारे कोर्सेज, अभी तो जितने कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं उसे वेबिनार कह के वो सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कहने का ये मतलब कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिकल थिंग इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन बिकॉज एंड द यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ ग्रोन फार एंड वाइड। इन द नेक्स्ट यूनिट विल बी टेकिंग अप इंटरनेट एंड बेसिकली वी आर डीलिंग कि ये सारे चीज़ जो हैं बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। अभी ई कॉमर्स के क्या क्या फीचर्स हैं, पहला है नॉन कैश पेमेंट। दिस वी अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आप कोई भी पेमेंट, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे वगैरह किसी पे भी अगर आपने वर्क किया है तो आप देखेंगे कि उनका जितने भी दे यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक व डायरेक्टली आप फंड से बैंक से ट्रांसफ़र कर दो, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स मोड कर देते हैं तो नॉन कैश पेमेंट जाता है। देन देयर इज़ 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी, कि कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो वाया सोशल मीडियाज़ नो, चाहे आपके फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर आपके जो एडवर्टीजमेंट्स जाते हैं टीवी पे, उस सब के थ्रू ये इट गोज़ ऑन टू अ लार्जर सेक्टर ऑफ पीपल। इससे क्या हो जा रहा है, जो सेल्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी ना देखिए, आप कहीं भी शॉप में जाते हैं तो आपके जो शॉपकीपर आपको दिखाते हैं कपड़े या जो भी मटेरियल आप ख़रीदने चाहते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में दिखाते हैं या फिर एक लिमिटेड अमाउंट में डिस्प्ले होता है। यहाँ पे जब आप साइट पे ख़रीदने जा रहे हैं तो यू हैव प्लेथोरा ऑप्शंस, राइट।
You can check up any options, you can take up any options and then you can do your work. Then support, e-commerce हमेशा प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को. प्री सेल्स एज इन कि वो एक आप कुछ भी, वही जैसे आपको बताया, आप एक शर्ट खरीदो, आप एक शर्ट देखो, जब आप देख ही रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे शर्ट्स और दिख जाएंगे. या फिर दिखेगा आपको कि दोज पीपल हु हैव बॉट दिस शर्ट और हैव ऑल्सो व्यूड सो एंड सो शर्ट्स, तो आपको और ऑप्शंस दिख जाएंगे. एक ही शर्ट अगर आप देख रहे हैं किसी साइज का तो उसके बहुत सारे कलर्स आपको दिख जाएंगे. प्री सेल्स आपको बहुत सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है. साथ ही साथ आफ्टर द सेल्स वो आपके घर पे सामान पहुंचा दे रहे हैं. अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको रिटर्न भी कर ले रहे हैं, आपको रिफ़ंड भी कर दे रहे हैं, विच ऑफ कोर्स इज़ वेरी बेनिफिशियल. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो इन्वेंट्री भी सारा मेंटेन करके रख रहे हैं. इन्वेंट्री आपका भी मेंटेन करके रख रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का भी मेंटेन करके रख रहे हैं. देन कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट, ई कॉमर्स प्रोवाइड्स फास्टर एंड बेटर रिलायबल कम्युनिकेशन with customers as well as partners. Now since we are dealing with the introduction of e-business, it is very important that we know what is the difference between traditional commerce and e-commerce, right? जैसे पहला है जो ट्रेडिशनल कॉमर्स, पहले ट्रेडिशनल कॉमर्स जैसे इसमें दिया हुआ हम लोग उसी के हिसाब से डिस्कस करेंगे. पहला है ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन, यू सी इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द प्री-रिक्विजिट्स ऑफ एनी बिजनेस. इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा होता है. और इन्फॉर्मेशन टाइमली, रिलायबल, एक्यूरेट, वो सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम समय पर, क्योंकि टाइम पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी आप सही डिसीजन ले सकते हैं. टाइम पे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो डिसीजन मेकिंग डिले हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये पहले क्या होता था ट्रेडिशनल बिजनेस में, जब तक वन पर्सन टू अदर पर्सन ये इन्फॉर्मेशन जाता था. अभी क्या है, अभी इन्फॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है और ये डिपेंडेंसी कम कर देता है टू द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाला. जैसे आप अगर MIS पढ़ेंगे तो MIS में क्या होता है, MIS में क्या होता है, हर एक मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम एनालिस्ट आ जाता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक आदमी का जो भी काम होता है वो एनालाइज करता है और उसके नीड के हिसाब से उनका एक सिस्टम डिज़ाइन करके देता है. जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उन्हें एक्सटर्नल डेटा बहुत ज़रूरत होती है. लो लेवल मैनेजर्स हैं, उन्हें इंटरनल डेटा की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो जैसी जिसकी ज़रूरत होती है, जैसा जिसको ज़रूरत होता है, वो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर करके उन्हें पहुंचा देते हैं. सेकेंड वाला इसमें है कि आपका जो ट्रेडिशनल कॉमर्स में है, द कम्युनिकेशन इज़ जनरली डन इन अ वेरी सिंक्रोनस वे, एक के बाद एक, और मैनुअल इंटरवेंशन ज़रूरी होती है फॉर ट्रांजेक्शन. लेकिन जो आपका इसमें होता है ई कॉमर्स वाले में क्या होता है, वो कम्युनिकेशन जो होता है वो एसिंक्रोनस होता है. मतलब जो एक दूसरे से, जिसको भी, जैसे हमने बताया, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है. ठीक है. ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, जो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस इन ट्रेडिशनल कॉमर्स. मतलब एक क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो होता है वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं रहता ना. इसमें क्या होता है कि क्योंकि सारे चीज़ रिकॉर्ड रहते हैं, स्टेबलाइज रहते हैं, तो यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी बनती है. ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो आपका जो बिजनेस होता था, इट यूज टू डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल स्किल्स. ठीक है. लेकिन ई कॉमर्स में देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, मैकेनिकली वो सारे काम करते जा रहे हैं. ट्रेडिशनल कॉमर्स में यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म वाज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन. ठीक है. इट डिपेंडेंट हाईली ऑन द पर्सनल कम्युनिकेशन, जो चल रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता था. जबकि ई कॉमर्स में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन वो लोग ले सकते हैं. साथ ही साथ यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिस पे वो कमर्शियली ग्लोबली काम कर सकते हैं. लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में तो ये नहीं होता. ट्रेडिशनल बिजनेस में एक पर्टिकुलर जगह पे उन्हें काम करनी पड़ती है. तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द ओरिजिन एंड नीड ऑफ ई कॉमर्स, कि हम लोगों ने ये कैसे पहले ई कॉमर्स आया, तो भैया आया कहाँ से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know that it was introduced way back in for e-commerce. We are not talking about computers, remember.
हम लोग बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली जो कॉमर्स करना, जो काम करना, जो बिज़नेस करना, ये करीब 40-45 साल पहले आया था। और बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस ये सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है। 1962 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पे आपका मेलिंग और फैक्सिंग आया। ठीक है, कि मेल से और फैक्स से डिजिटली ट्रांसफ़र हो सका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे। 1982-90 में आया, इट वॉज apparent in the beginning that B2B means business to business online shopping. This right in the next topic. After this, then the next topic which I shall take up would be models and types of business, e-commerce. तो उसमें B2B, B2C ये सारी चीज़ हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होता है कि जो बिज़नेस टू बिज़नेस ऑनलाइन शॉपिंग होता है वो कमर्शियली ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बट बिजनेस टू कस्टमर वॉज नॉट सक्सेसफुल, राइट। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब आया, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं, और इन 1962 फ्रांस लॉन्च द प्रीकर्सर टू द इंटरनेट कॉल्ड मिंटल। मिंटल क्या था? मिंटल एक वीडियो टेक्स्ट ऑनलाइन सर्विस था which was accessible through telephone lines and was the world's most successful online service before www came into being। तो मिंटल पहले आया और उसके बाद www आया। अभी 90s अभी तक क्या हो रहा है, टिम बर्नर्स ली ने अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड हाइपरटेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाया, जिसे वो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। 1994 में नेटस्केप आया, जो ऑनलाइन सर्फिंग के लिए यूज़ होता था। 1995 में ई लर्निंग के एक्सपीरियंस के लिए ई लर्निंग डेवलप हुआ, जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज़ अ वेबसाइट। सबसे बड़े 2 कॉमर्स के साइट लॉन्च हुए, जिसमें Amazon.com और eBay.com था। 1998 में DSL और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आया, जो फास्ट ऑनलाइन वेब इट वाज रियली फास्ट। देन 1999 में जो ई कॉमर्स का जो कंसंट्रेशन था वो बिजनेस टू कस्टमर B2C से बिजनेस टू बिजनेस इसमें ज़्यादा है। दिस आई रिपीट अगेन, नेक्स्ट यूनिट डिटेल डिस्कशन। 2001 में B से B2E में आया, ई गवर्नमेंट, ई लर्निंग, एम कॉमर्स। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग इज़ व्हाट मी एंड यू आर डूइंग, राइट। ई गवर्नमेंट जो आता है, जो कि ई टेंडर्स वगैरह होते हैं, वो सब आते हैं। एंड एम कॉमर्स इज़ मोबाइल कॉमर्स, जो मोबाइल पे अब तो सारे ऐप्स अवेलेबल हैं और मोबाइल पे ही हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, मोबाइल पे ही हम सारा काम कर लेते हैं। अब देखिए ये ई कॉमर्स क्यों गेन होता गया पॉपुलैरिटी। सबसे हम लोग पहले इफ इट इज it is described here properly if you want to write in your exams। सबसे पहले है एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशंस। एक एक करके देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे हेल्प करने लगा। पहले ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प किया कि वो अपने मार्केट को एक्सपैंड कर पाते हैं, राइट। पहले जहाँ एक लोकल मार्केट पे वो लिमिटेड थे, अभी वो इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में विथ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग बेस्ट कस्टमर्स, बेस्ट सप्लायर्स, बेस्ट सूटेबल पार्टनर्स दे कैन फाइंड, एंड विथ नॉट जस्ट इन देयर कंट्री बट ग्लोबली, right। E-commerce then also helps the organizations to to reduce the cost, to create, process, distribute, retrieve and manage paper based information by digitizing the information। जैसे न्यूज़पेपर्स था ना, तो न्यूज़पेपर्स का सब चलता था, अभी सारे न्यूज़पेपर्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ई कॉमर्स आपके कंपनी का ब्रांड बढ़ाता है। देन प्रोवाइड्स बेटर कस्टमर सर्विसेज, वो बिज़नेस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, पेपर वर्क कम करता है। देन दिस कंपनी हैज़ ई कॉमर्स का जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, पुल टाइप ज़्यादा सप्लाई मैनेजमेंट आते हैं। इन पुल टाइप सप्लाई मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर यूज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग पे। कि आपका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि इस सारे कपड़े के डिस्प्ले लगे हुए हैं, और उसके बाद लोग गए और उसको ख़रीदना है तो ख़रीदे, ना ख़रीदना ना ख़रीदे, एंड ऑफ द सीज़न सेल लगता है। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपके सारे कपड़े लगे हुए हैं, वही कपड़े अब हमने ऑर्डर दिया, देन वो ऑर्डर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर फिर उसको मैन्युफैक्चर करता है, और उसके बाद उसको वाया कुरियर या वट एवर वे दे थिंक इज अप्रोप्रिएट, इट इज़ सेंड टू द एंड रिजल्ट ऑफ द कस्टमर्स, राइट। नाउ हाउ इज इट एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स। पहला, ये कस्टमर्स हम लोग एज कस्टमर्स मी एंड यू,
हम लोग 24/7 कभी भी उस अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज देख सकते हैं, कभी भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। हमें जल्दी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। देन हमें चीपर प्रोडक्ट्स मिलती हैं क्योंकि एमआरपी से कम दाम में तो रहता ही है, साथ ही बहुत डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं, बेटर ऑप्शंस और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो कस्टमर्स जो अपने रिव्यू पुट करते हैं, जब कोई कस्टमर्स में कुछ खरीदते हैं तो जनरली उसका रिव्यू लिखते हैं, और जो रिव्यू लिखते हैं वो हमें एक आइडिया फीडबैक प्रोवाइड करता है वेदर वी शुड गो फॉर एक्सपेरिमेंटिंग न्यू प्रोडक्ट और नॉट। देन वर्चुअल ऑक्शंस भी होते हैं। देन व्हाट इट इज़ रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, हम लोग तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही साथ हम लोग जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें सब्सटेंशियल डिस्काउंट से मिल जाता है। नाउ एडवांटेजेस टू द सोसाइटी को कैसे है कि पहले अभी कस्टमर्स को शॉप नहीं जाना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक रोड पे लेस है, तो पोल्यूशन लेस है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी लोग खरीद सकते हैं। तीसरा, पहले जो रूरल एरियाज़ में देयर वाज और शॉप्स कुड नॉट बी ओपन, नो, तो रूरल एरियाज़ में दे वर नॉट प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल, अभी सब चीज़ खरीद सकते हैं। देन ई कॉमर्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एट रिड्यूस कॉस्ट एंड एन इम्प्रूव मैनर। ठीक है, नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, ये तो हमने जाना कि ई कॉमर्स कैसे सोसाइटी को, कस्टमर्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वील स्टडी अबाउट हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स को हम लोग परफेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेस्ट एनालिसिस, जो हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस, पेस्ट होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। दीज आर द पेस्ट एनालिसिस करके हम ढूंढ के निकालते हैं कि कौन से फैक्टर्स ई कॉमर्स को हेल्प कर रहे हैं या इफेक्ट कर रहे हैं। पहला हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए गवर्नमेंट कौन सी है, उनकी कैसे रजिस्ट्रेशंस है, what are the various initiatives which are taken by them for funding and to support the use of development of e-commerce, वो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ई कॉमर्स को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कैसे इस चेंजेस के साथ एडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन पेमेंट कैसे हो रही है, पेमेंट में क्यों क्या होता है ना, नए नए पेमेंट का सिस्टम्स आता रहता है, तो कैसे वो लोग उसे एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड द वेरियस आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम बन सके और अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके एज मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प करते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ई कॉमर्स को डेवलप, देखिए किसी भी टाइप का कॉमर्स डेवलप होता है ना, तो पॉलिटिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, कैसा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट, कैसे होते होते सर्टन सेंटर्स इन आर India has become a technological hub but other sectors are not becoming a technological because there it is accepted but this is not promoted to the extent that it should have been, right? So the political factors are very important. The kind of government which comes into the power, it plays a very important role in creating the decisions about about the e-commerce. Now next is the economic factors. Obviously अगर इकोनॉमी होगी कंट्री की अच्छी, तभी ना लोग खरीदने जाएंगे। देखिए एक तो पहले आप उनको जो ई कॉमर्स वाले लोग हैं उन्हें लो कॉस्ट पे भी दे रहे हैं, डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आने जाने का खर्चा भी बचा रहे हैं, सारे चीज़ तो बेहतरीन ही हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं रही, किसी भी रीज़न से अगर इकोनॉमी स्लो डाउन रहा, तो फिर लोग कैसे खरीदेंगे। तो एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पीडियर एंड मोर इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, किसके साथ, सप्लायर्स के साथ, लोअर ग्लोबल शेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, चीपर कस्टमर सर्विसेज, सारे इकोनॉमिक कॉस्ट्स जो है डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ना व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स होते हैं कि देखिए आपको किसी भी चीज़ को एक अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तो जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं, राइट, they have to understand that they have to make information technology a part of their own lives. ठीक है, तो आप भी, आपका बिजी शेड्यूल चल रहा है, आप यहाँ से अपने ऑफिस काम पे जा रहे हैं, आप बैठ के अपने रास्ते में आपने कुछ ख़रीदना है,
आप उसको सीधा सीधा गूगल करो या जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हो उसे डालो, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केट प्लेस आप उनको पहले ही ऑर्डर दे दो, वो आपके घर पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन देर आर सर्टन सेक्टर ऑफ पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन इनकॉपरेटिंग द थिंग एंड गोइंग फॉर अ स्मॉल, अगर रिन का साबुन है, रिन सोप, दे विल गो टू द शॉप टू बाई इट बट दे विल नॉट यूज़ द ऐप एक्सेट्रा। तो अभी क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और मिडिल क्लास हाईली मोबाइल हो गया है, तो पूरा टाइम दौड़ते ही बिताता है, तो ये जितने भी वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ईबे है, ये काफ़ी बढ़ गए हैं। देन व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपके आईसीटी जो होते हैं वो की फैक्टर है। तो जितना आपका आईसीटी बढ़ा है, कितना आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो तरीका है वो बढ़ा है, किस तरह से आप उसका नेटवर्किंग और बढ़ाएं, कितना एफिशिएंट, फास्टर, ईजर, कितना इकोनॉमिकल हो गया है, ठीक है। ये सारे चीज़ जो होते हैं ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनेट एक्सेस इज एलिमिनेटेड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिकम ईजियर, जो आपको ई कॉमर्स से बूटअप करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिमेंशंस बाय बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स? सबसे पहले हम लोग बिजनेस डायमेंशन देखते हैं ई कॉमर्स का। तो जब हम लोग बिजनेस डायमेंशन देख कर रहे हैं ई कॉमर्स का, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशर्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज, ये लोग हाईएस्ट डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स द फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स, जो हमने आपको 1-to-1 मार्केटिंग बनाया था। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कमर्शियल एयरलाइन सपोज दे डू नॉट सेल डायरेक्टली टू द ई कस्टमर्स, इंस्टेड वो जितने भी आपके जितने लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं वो किसी और के साथ मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जैसे MakeMyTrip.com है, ऐसा कुछ से वो करते हैं। नाउ दे आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरैक्टिव बिजनेस डायमेंशंस, एक हो गया कस्टमर डायमेंशन और दूसरा हो गया एंटरप्राइज डायमेंशन। कस्टमर डायमेंशन क्या होता है? ये है कि जो भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज हैं डायरेक्टली आप फाइनल कस्टमर से बात करो, डन। दूसरे जितने भी टैंजिबल गुड्स क्या होते हैं? टैंजिबल होते हैं वो चीज़ जो आप टच कर सकते हैं, इनटैंजिबल होते हैं वो चीज़ जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो टैंजिबल गुड्स जितने हैं उनके फिजिक दे मस्ट डिलीवर्ड, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ से भी ऑर्डर प्लेस किया गया है। तीसरा है जो टैंजिबल गुड्स जो होते हैं उन्हें प्रॉपर्ली भेजा जाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन केस ऑफ कैटलॉग, ऑर्डरिंग, बिलिंग। अभी देखिए जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल आती है, आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल, तो अभी क्या होता है वो उसको सबलेट कर दिया गया है और वो लोग बिल जनरेट करते हैं, द थर्ड पार्टी जनरेट्स द बिल एंड वी कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड पे इट, राइट। और फिर इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसे भी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे इनटैंजिबल है जो अभी हम कर रहे हैं। इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग अ लेक्चर, इट इज़ नॉट गुड्स समथिंग विच आई एम डिलीवरिंग टू यू, कोई सामान हम आपके घर नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये एक सर्विस हम आपको घर पहुंचा रहे हैं विच इज़ इंटैंजिबल, राइट। नाउ इन द अदर डायमेंशन इज द एंटरप्राइज डायमेंशन। एंटरप्राइज डायमेंशन प्राइमरीली क्या होता है? इट इज़ इनकॉर्पोरेट और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल सप्लाई चेन ओरिएंटेशन में आता है। फाइनल ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम अपने उसके डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी लाए, कि सब चीज़ में, सिर्फ डिज़ाइन में ही नहीं, प्रोक्योर करने में, मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक प्रोसेस में, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है टू द फिनिश गुड्स, उनके डिलीवरी और सेल तक, टू द पॉइंट ऑफ सेल, वो ठीक से काम करे, एंटरप्राइज को ठीक से चलता जाए। कभी कभी क्या होता है, द थर्ड पॉइंट सेज दैट दिस डायमेंशन एनकम्पासेस प्रोडक्ट सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, उसको भी प्रोडक्ट सपोर्ट और मेंटेनेंस को करके सीधा कस्टमर्स तक चले जाता है। ई कॉमर्स, देन इट सेज दैट जो एंटरप्राइज डायमेंशन में ई कॉमर्स फैसिलिटीज माइग्रेशन बिटवीन कस्टमर एंड एंटरप्राइज डायमेंशन। फॉर एग्जांपल जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो वाया इलेक्ट्रॉनिक, सपोज वो जानते हैं कि वो क्या खरीदने वाले हैं, उसका रिव्यू देख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं, वर्चुअल शोरूम्स में जाके देख सकते हैं, वो सारी चीज़ देख सकते हैं। नाउ टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स में क्या होता है? 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं मार्केट एनवायरनमेंट के। पहला है एक्सेस डायमेंशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, जो बायर्स और सेलर्स दोनों विदाउट एक्चुअली मीटिंग वाया इंटरनेट,
वो मार्केट प्लेस हो गया, ई मार्केट प्लेस हो गया, जहाँ पे वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिकली डेटा एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से अनस्ट्रक्चर और इनफॉर्मल वेज में बात करके काम कर सकते हैं. एक्सेस हैज़ बिकम मच ईजियर. ई कॉमर्स एक्सटेंसिव यूज़ करता है आपका पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, वॉइस, फैक्स, टेली कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी है, इंटरनेट वगैरह सब यूज़ करता है, और वेरियस लैंड्स और मैंस के कारण इट्स हैज़ बिकम मच ईजियर. Then is the transaction dimensions. Transaction dimensions has become important. We know of the various अभी क्या होता है, पहले ट्रांजेक्शन, अब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ बिकम वेरी इजी कि डायरेक्टली आप कुछ खरीदो, पेमेंट वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल पे, ई पे, ऑटोमेटेड टेली मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू आप डायरेक्टली कर सकते हैं. सपोर्ट डायमेंशन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड टू लेंड सपोर्ट टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट टू दिस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस. जहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, प्राइजेस, सर्टिफिकेशन ऑफ द बायर, सेलर, आइडेंटिटीज़, क्रेडिट चेक्स, गारंटीज एंड एड्रेस वेरिफिकेशन, वो सारे पता रहते हैं. एग्जाम्पल है कि जैसे बार कोड रीडिंग है या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेटल मैकेनिज्म्स है, और ये ट्रांजेक्शन करने में भी हेल्प करता है. दिस एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल आई कैन ऑल्सो गिव यू इज़, सपोज इफ़ यू सीन कि कभी आप जब पेमेंट कर रहे हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं तो एक तो आएगा कि आपको एक्सेस डायमेंशन का बताया कि आप एक्सेस आराम से कर सकते हैं. देन क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जो होता है, वो सारे चीज़ हैं जो आपके सपोर्ट डायमेंशंस में, ट्रांजैक्शन डायमेंशन में आ गया. साथ ही साथ वो ट्रांजैक्शन एक पेमेंट गेटवे सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे सिस्टम, विल डिस्कस दिस लेटर. जैसे बिल्डेक्स वगैरह होता है या टेक प्रोसेस, आप देखेंगे नीचे में आपका, अगर एक ही बिल्डेक्स है तो बिल्डेक्स ही रहेगा, नहीं तो मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो बिल्डेक्स या क्रेडिट या टेक प्रोसेस कौन सा पेमेंट गेटवे सिस्टम होना है वो आपको प्रोवाइड करते हैं. तो वो लोगों का काम क्या होता है? वो लोगों का काम ये होता है कि वो देखें कि काम मतलब स्मूथली चल रहा है. सपोर्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं उनके बदले. और इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. I hope the things are clear to you. If you do like my video, please press like button and do subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon for regular updates, and stay safe. Follow the norms of social distancing, and happy learning. Thank you.